Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswati International Academy. Student, today we are going to learn chapter number 7, Java Basics Part 2. In last session, we learned what is Java, introduction about Java, as well as we completed one practical program. Now, in this session, we are going to learn structure of Java program. So let's start it, student. Programming languages differ from ordinary human languages in being completely unambiguous and very strict about what is and is not allowed in a program. Student, जो जावा का स्ट्रक्चर प्रोग्राम है उसमें जो भी ह्यूमन है वो जो भी लैंग्वेज में कोड लिखेगा उसमें अगर कैपिटल है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल है तो स्मॉल लेटर, यानी वो जो भी वर्क चेक करता है वो स्ट्रिक्टली चेक होता है. अगर उसमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग ने एक्स्ट्रा रखा है तो भी वो अलाउड नहीं करेगा, और जो नेसेसरी थिंग है वो नहीं है वहाँ पे तो भी वो अलाउड नहीं करेगा. तो ये जावा प्रोग्राम्स के कुछ रूल्स हैं. द रूल्स दैट डिटरमाइन व्हाट इज अलाउड आर कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. यानी जो रूल्स है वो जावा प्रोग्रामिंग के उसमें जो अलाउड है करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. Syntax rules specify the basic vocabulary of the language and how program can be constructed using things like variable, expression, statement, branches, loops and method. Since syntactically correct program is one that can be successfully compiled or interpreted. So student, whatever program we will write, in that there is the variable, expression, statement, branches, it means this bracket is opening and closing, it's called branches, or your loops, for loop, while loop, do while loop and methods. So a syntactically correct program is one that can successfully, जो program successfully compiled हो और interpret हो उसको हम लोग successful compile program बोलते हैं. A structure of Java program is shown in figure 7.5 here. Text in angle bracket. Okay, the text जो क्लास का नाम लिखते हैं वो हम लोग को एंगल ब्रैकेट में लिखना होता है. Is used as placeholder that describes something actual we need to type while writing actual program. The definition of the method, function लिखते तो वो सर्कल ब्रैकेट में लिखेंगे. And Java consists of function header that sequence of statement enclosed between curly bracket, इसको बोलते हैं curly braces. So as Java in an object oriented language here, everything is defined as a part of class. Thus a method can't exist by itself, it has to be part of class. स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. पब्लिक लिखना कंपलसरी नहीं है बट लिखोगे तो भी चलेगा. तो क्लास का नाम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी वो वर्क होगा. उसके बाद ब्रैकेट होने के बाद ये लाइन कंपलसरी होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये हमारा मेन फंक्शन होता है. और इसके बाद यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हो उस पे जावा प्रोग्राम एरर चेक करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है. अभी हम लोग देखेंगे कि क्लास नेम यानी एग्जैक्टली क्या लिखना होता है. तो क्लास नेम इन द फर्स्ट लाइन इज द नेम ऑफ द क्लास हैविंग मेन मेथड इन इट. यानी जो क्लास का नाम होता है उसके अंदर आपको मेन मेथड लिखनी होती है. इफ द नेम ऑफ द क्लास इज कॉल कॉस्ट, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट, अगर क्लास का नाम है सपोज कॉल कॉस्ट, देन द प्रोग्राम शुड कन्वेंशनली बी सेव इन ए जावा सोर्स फाइल विथ नेम callcost.java. अभी देखना स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, वापस ये रिपीट करो बिकॉज ये मिस्टेक हर स्टूडेंट की होती है जो आपसे नहीं होनी चाहिए. तो सेम नाम से ही प्रोग्राम सेव करना है. अगर यहाँ पे सी कैपिटल तो यहाँ पे भी सी कैपिटल होना चाहिए, वापस यहाँ पे सी कैपिटल तो यहाँ पे भी होना चाहिए. When this file is compiled, another file name callcost.class is generated. जैसे आप इसको सेव करते हो तो उसी के अंदर callcost.class नाम की फाइल भी जनरेट होती है. तो this class file is given a name using class name. And class file callcost.class contains the translation of the program into Java bytecode which can be executed by Java interpreter. स्टूडेंट, हम लोग को जो एग्जीक्यूट करने की फाइल होती है वो डॉट जावा ही है, बट जो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे क्रिएट होती है डॉट क्लास नाम से, उसका जो भी ट्रांसलेशन होता है वो जावा बाइट कोड में होता है और जिसके थ्रू अपना जावा इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है.
तो वेरिएबल एंड मेथड डिक्लेरेशन आफ्टर एंड बिफोर मेन मेथड इज ऑप्शनल। तो जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है उसके लिए मेन मेथड लिखना ज़रूरी है। ईच प्रोग्राम मस्ट हैव वन क्लास दैट कंटेन पब्लिक मेथड मेन, यानी हर एक क्लास के अंदर कंपलसरी मेन मेथड होना ज़रूरी है। जावा इज़ अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज। द लेआउट such as use of blank lines and indentation of the program is code listing 7.1 is not a part of the syntax or semantics of the language. The computer does not care about the program layout. We can write the entire program together on single line as far as it is concerned. However, layout is important to human reader. Student, जावा जो है वो फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है, यानी उसके अंदर जो लेआउट है उसके अंदर आप ब्लैंक लाइन यूज़ कर सकते हो, इंडेंशन यूज़ कर सकते हो, और जब भी जो भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसको अगर आपको लगा कि नहीं मुझे कंटिन्यू एक ही लाइन में लिखना है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ह्यूमन के रीडिंग से वो समझ में आएगा वो डिफ़िकल्ट रहेगा। इसलिए सिंगल लाइन में लिखोगे तो आपको वो डिफ़िकल्ट जाएगा, इसलिए एक लाइन कंप्लीट होती है तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे तो ईजिली समझ में आता है। So a program can contain other method beside main as well as other variable. We will learn more about this later. Now let us start examining simple Java statement. The basic thing we can do in Java within a method definition such as main. We will learn the following syntax. Student, कोई भी मेन मेथड के अंदर जब जावा प्रोग्राम के जो सिंटेक्स यूज होते हैं वो जो मेन सिंटेक्स है वो है हमारे डेटा टाइप, यानी इंटीजर, डबल, फ्लोट, वेरिएबल, यानी हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते तो इट शुड बी मीनिंगफुल। जैसे कि वेरिएबल इंटीजर ABC, इट्स अ मीनिंगफुल नेम। या सपोज हम लोग को स्टूडेंट का नाम लिखना है तो इंटीजर स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट नेम, इट शुड बी मीनिंगफुल नेम। ओके स्टूडेंट। लिटरल इज द कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। कमेंट्स हमें पता ही है, डबल स्लैश या स्लैश स्टार लिखते तो हम लोग वहाँ पे कमेंट यूज़ कर सकते हैं। जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, एरिथमेटिक ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, कंपैरिजन ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर यानी लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन में वो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंपेयर करेगा जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। और लॉजिकल ऑपरेटर में वो चेक करेगा, और या एंड, मतलब ये लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और ऑपरेटर का यूज होता है। ओके स्टूडेंट, अभी इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के बारे में पहले डिटेल में जानेंगे। तो डेटा टाइप डिटरमाइन द रिक्वायर्ड मेमोरी साइज, टाइप ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। डेटा टाइप से क्या क्या डिटरमाइन होता है, तो सबसे पहले मेमोरी साइज। अगर आपने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5 तो a के अंदर जो इंटीजर a है उसकी साइज कितनी है, उसमें कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है, उसकी रेंज क्या है और वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। राइट। जावा सपोर्ट 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट हैंडल कॉमन टाइप्स फॉर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर एंड बुलियन वैल्यू। जो डेटा टाइप्स है उसमें कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप, कॉमन जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स, ये दो ही आंसर देता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको बुलियन वैल्यूज। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नेम, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। तो स्टूडेंट ये सारे जो डेटा टाइप है ये हम लोग यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट 4 टाइप्स होल्ड इंटीजर यानी बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर यहाँ पे लिखे हैं कि नंबर सच है 17, माइनस नंबर लिखना है तो भी और 0 लिखना है तो भी। बट नेक्स्ट 2 होल्ड रियल नंबर, यानी फ्लोट और डबल के अंदर रियल नंबर यानी डेसिमल नंबर स्टूडेंट स्टोर होता है। तो ये याद रखना, अगर सिर्फ नंबर चाहिए आपको इंटीजर तो उसके लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग यूज होता है, बट डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप जो यूज होता है वो है फ्लोट और डबल। Char hold a single character from Unicode character set and Boolean hold one of the 2 logical values true or false। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो char है ये यूनिकोड कैरेक्टर सेट करते हैं, यानी सिंगल कैरेक्टर आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और बुलियन जो है वो लॉजिकल वैल्यूज के लिए स्टोर होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो these data types are called primitive as they are built into the system. Note that these data types are machine independent, which means that we can rely on
rely on their sizes and characteristics to be consistent across all Java program on all machine. So table 7.1 lists the detail of data type. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो इनकी टाइप दिया है, वो कितने स्टोरेज स्पेस है वो भी दिया है, टाइप ऑफ वैल्यू दी है और रेंज उनकी क्या है वो। ये स्टूडेंट आपको टेबल थोड़ा सा याद रखना है, इसमें मैक्सिमम बाइट, शॉर्ट, इंटीजर या बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे कि अगर बाइट डेटा टाइप है तो कंप्यूटर में जब उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी तो वो स्टोरेज स्पेस क्या है, 1 बाइट का है। और अगर इसमें एक इंटीजर वैल्यू की जो रेंज है तो ये हम लोग -128 से 127 तक कंसिडर कर सकते हैं। उसी के बाद अगर डेटा टाइप हम लोग ने शॉर्ट लिखा तो ये 2 बाइट का स्टोरेज स्पेस है जिसके अंदर भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, बट वो कहाँ से कहाँ तक, तो -32768 से -32767 तक। और इंटीजर डेटा टाइप है तो 4 बाइट्स, लॉन्ग डेटा टाइप है तो 8 बाइट्स, फ्लोट डेटा टाइप है तो 4 बाइट्स, डबल है तो 8 बाइट्स, कैर है तो 2 बाइट और बुलियन है तो 1 बाइट। स्टूडेंट ये आपको याद रखने हैं सारे स्टोरेज स्पेस के, बराबर, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा फिलहाल क्लास में लेक्चर नहीं होने की वजह से जो एमसीक्यू का मैं आपका ग्रुप टेस्ट लेता हूँ वो फिलहाल बंद है स्टूडेंट। इसकी वजह से अगर जब भी मेरा जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद आपको कंपलसरी एमसीक्यू पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम टाइम पे वो एमसीक्यू पढ़ने जाओगे तो कंप्यूटर का पेपर आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा और बाद में अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहोगे तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ वंस माय वीडियो इज कंप्लीटेड, आफ्टर दैट अटेम्प्ट ऑल द एमसीक्यू और टिक ऑल द आंसर इन योर दर्पण। नाउ our next topic is variable. Variable यानी if you want anything to be remembered by the computer during program execution, then it needs to be stored in the memory of computer. Program manipulate the data that are stored in the memory. In machine language, data can only be referred by giving numerical address of the location in memory where it is stored. In a high-level language such as the Java, names are used instead of numeric address of memory location to refer to data. The programmer has to remember only the name. A name used to refer to the data stored in a memory is called a variable, and a variable can take different data values at different time during the execution of the program, but it always refers to the same memory location. A variable can be used in a Java program only if it has first been declared. Student, variable यानी जब भी हम लोग इंटीजर a लिखते हैं तो a आपका वेरिएबल नाम हुआ है, उसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। ओके, सो वन और मोर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इन जावा यूजिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट विद फॉलोइंग सिंटैक्स। यहाँ पे टाइप नेम यानी इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम a b c और आपको कोई और नाम देना है, एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय सैलरी, ये नाम आप वेरिएबल के थ्रू मतलब एज अ वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, द कन्वेंशन यूज हियर इन द सिंटैक्स आर एज फॉलोज। एंगल ब्रैकेट्स कब यूज करते हैं, टू डिनोट द आइटम टू बी स्पेसिफाइड बाय यूजर, और कर्ली ब्रैकेट कब यूज करते हैं, टू डिनोट द लिस्ट ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा। स्टूडेंट ये दोनों चीज़ें याद रखना बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हियर डिनोट द लिस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम व्हेन द लिस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम should be separated by comma. Type name is to be replaced with the keyboard denoting the data type of the variable. It is used to determine the size of variable, the values it can hold, the operation that can be performed on it. When the computer executes a variable declaration statement, it sets aside memory for the variable and associates the variable's name with that memory. Some example of the variables are as mentioned. So integer marks, डबल, अमाउंट, इंटरेस्ट, फ्लोट, रेट, ये हम लोग ने स्टूडेंट जो प्रोग्राम बनाया था प्रीवियसली उसी की तरह यहाँ पे डिक्लेरेशन बताया कि ये किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होता है। जिसके इंटीजर में हम लोग मार्क्स लिख सकते हैं, तो ये मीनिंगफुल एक नाम है। अमाउंट, इंटरेस्ट, रेट, ग्रेड, बुलियन है तो इस पास यानी या तो वो पास हो सकता है या तो फेल हो सकता है, तो वो ट्रू और फॉल्स में कंसिडर होगा। ओके स्टूडेंट, और द डिफाइन वेरिएबल नेम वी कैन फॉलो सर्टन रूल। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे एमसीक्यू हर साल पूछा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है वेरिएबल का नाम डिफाइन करने का, वो फर्स्ट रूल है कि इस मस्ट बिगिन विद द अल्फाबेट अंडरस्कोर और $sign आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर।
यानी फर्स्ट कैरेक्टर के पहले आप अगर अंडरस्कोर यूज़ करते हो यानी अंडरस्कोर ग्रेड अंडरस्कोर इस पास वो चलेगा, वैलिड है, या डॉलर भी यूज़ करते तो वो वैलिड है, बट इट मे कंटेन डिजिट अल्फ़ाबेट डॉलर एंड अंडरस्कोर। ओके, अगर आप डिजिट यूज़ करें कोई इशू नहीं, अल्फ़ाबेट यूज़ करें कोई इशू नहीं है, डॉलर या अंडरस्कोर भी चलेगा, बट लीगल नेम होंगे तो बर्थ अंडरस्कोर डेट, रिजल्ट, कॉल कॉस्ट, टॉप 5 स्टूडेंट, डेट, अमाउंट डॉलर, डॉलर प्राइस, ये सारे अलाउड है स्टूडेंट। और जो इलीगल नेम्स हैं जैसे कि 4ME तो ये नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में हम लोग डिजिट नहीं लिख सकते। परसेंटेज डिस्काउंट ये नहीं चलेगा, परसेंटेज साइन अलाउड नहीं, या तो अंडरस्कोर या तो डॉलर ही यूज़ कर सकते हैं। बर्थ स्पेस डेट तो यहाँ पे ये 2 वेरिएबल कंसिडर होते हैं, ये एक वेरिएबल कंसिडर नहीं होता, इसलिए ये भी अलाउड नहीं है। स्टूडेंट समझ में वेरिएबल नेम कैसे डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा रूल जो बोलता है कि वेरिएबल डिफाइन करते वक्त क्या याद रखना है हमें, तो नो स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल, स्पेस अलाउड नहीं करनी है वेरिएबल लिखते डिफाइन करते हैं। दस बर्थ डेट इज इनवैलिड वेरिएबल नेम, और उसकी वजह से बर्थ डेट ये वेरिएबल नेम नहीं है। इट कैनॉट बी रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड हैव स्पेशल यूज इन जावा एंड कैनॉट बी यूज बाय द प्रोग्रामर फॉर द अदर पर्पज। एग्जाम्पल ऑफ सम रिजर्व वर्ड्स आर क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, इफ, एल्स एंड वाइड। ये जो स्टूडेंट नाम जो है यहाँ पे क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, इफ, एल्स, ये सारे इसको रिजर्व वर्ड बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, सो गाइडलाइन फॉर नेमिंग वेरिएबल, यहाँ पे कुछ गाइडलाइन बताइए कि आप नाम कैसे लिख सकते हो। तो चूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, जावा अलाउज वेरिएबल नेम ऑफ एनी लेंथ। तो वेरिएबल नाम लिखने का कोई फिक्स लेंथ नहीं है, आप कितने भी बड़ा लेंथ का भी नाम वहाँ पे लिख सकते हो, बट जो नाम लिखोगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। So when name includes several words such as balance, amount, follow one of the convention mentioned below. Capitalize the first alphabet of each word except for the first word. This is sometimes referred to as a camel case since the uppercase letter in the middle of a name are supposed to look like the humps on a camel's back. Example: balance, amount, birth, date. तो ये कैमल बैग, यानी वो हम लोग जो बोलते हैं कि फर्स्ट लेटर के बदले इधर का कैपिटल किया, बर्थ डेट के बदले ये कैपिटल किया, तो ऐसे लिखने के बदले ऐसे भी लिखेंगे तो भी अलाउड है, या सेपरेट वर्ड लाइक विद अंडरस्कोर लाइक बैलेंस अंडरस्कोर अमाउंट बर्थ डेट अंडरस्कोर डेट, ये भी अलाउड है। ओके स्टूडेंट, सो नोट द जावा इज अ कैसे, यानी यहाँ पे स्पेस देने के बदले अब ये टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टूडेंट, तो समझ में आएगा, राइट। सो नोट दैट जावा इज अ केस सेंसिटिव, ये जो मैंने ऑलरेडी बोला, अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल में ही लिखना है, उसको स्मॉल लिख के नहीं चलेगा। सो अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट, दस वेरिएबल नेम बैलेंस एंड बैलेंस आर डिफरेंट। अगर आपने वेरिएबल का नाम बैलेंस लिखा और आप यूज करते हो ये बैलेंस यूज करो, मैंने बी कैपिटल लिखे तो ये अलाउड नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा। इट इज customary for names of classes to begin with uppercase letter while names of the variable and method begin with lowercase letter. Okay student, जब भी क्लासेस का नाम लिखते हो आप तो वो अपर केस लेटर में लिख सकते हो, और वेरिएबल का नाम जो है वो लोअर केस लेटर में लिख सकते हैं। तो गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, डिक्लेयर ओनली वन वेरिएबल इन अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। जब भी आप वेरिएबल का गुड प्रोग्रामिंग का जो टेक्निक है उसमें जब भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करोगे तो वो वन वेरिएबल होना चाहिए, यानी ए बी सी ये प्रॉपर वेरिएबल है। इंक्लूड अ कमेंट विद ईच वेरिएबल डिक्लेरेशन टू एक्सप्लेन इट्स पर्पस इन द प्रोग्राम। जैसे वेरिएबल लिखा तो उसके आगे कमेंट डाल दो कि ये वेरिएबल हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है वहाँ पे यूज़ करने का, जिसको हम लोग गुड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और डिक्लेयर इंपॉर्टेंट वेरिएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, डिक्लेयर वेरिएबल विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू द ओवरऑल लॉजिक ऑफ द फंक्शन at that point where they are first used. Okay student, in Java there are 3 kinds of variable. Java के अंदर टोटल कितने काइंड्स के वेरिएबल है, 3 टाइप्स के वेरिएबल है। एक है इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा है क्लास वेरिएबल, तीसरा है लोकल वेरिएबल। स्टूडेंट इसके ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको इसको समझना है, याद रखना है। इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में भी देखेंगे। फंक्शन पैरामीटर एंड वेरिएबल डिक्लेयर इन द फंक्शन आर इनक्लोज्ड एज अ लोकल वेरिएबल। वी विल स्टडी अबाउट इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल लेटर। अब फिलहाल हम लोग ये देखना है कि अगर कोई भी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो वी कैन ऑल्सो गिव ईच वेरिएबल एंड इनिशियल वैल्यू विच डिक्लेयरिंग, लाइक सपोज इंटीजर मार्क्स ऑफ 10,
टोटल मास इक्वल टू 100 एंड काउंटर। यहाँ पे ये 3 वेरिएबल है और बुलियन इज पास इक्वल टू ट्रू। तो ये सारे जो वेरिएबल है ये अगर मेन मेथड के अंदर है या कोई फंक्शन के अंदर, तो इसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलेंगे। इन जनरल सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज एज फॉलोज। तो वही हम लोग को वापस समझाया गया है यहाँ पे स्टूडेंट। नोट दैट लोकल वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट वैल्यू। इट इज प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असाइन वैल्यू टू ईच सच अ वेरिएबल बिफोर द फर्स्ट यूज। सो फिगर 7.6 शोज द यूज ऑफ। स्टूडेंट ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर एरर क्या है, सबसे पहले ये समझना है हमें। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ये मैसेज अच्छे से पढ़ना है हमें। वेरिएबल रेट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, यानी रेट की कोई वैल्यू असाइन नहीं करने की वजह से यहाँ पे ये कैलकुलेट कैसे करेगा, अमाउंट डॉलर इक्वल रेट इन अमाउंट, तो रेट की वैल्यू नहीं है तो ये कैलकुलेशन होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जर्व दैट द लोकल वेरिएबल रेट इज नॉट असाइन एनी वैल्यू, इस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं है। इसकी वजह से बिफोर इट्स यूज इन स्टेटमेंट अमाउंट डॉलर इक्वल टू रेट into dollar amount when we try to compile the program, compiler will give an error as we can see in this figure 7.6। समझ में आया स्टूडेंट? तो जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका अगर यूज मतलब उसकी वैल्यू अगर वहाँ पे नहीं है और उसका यूज करना चाहते हैं तभी वो एरर देगा। तो यहाँ पे टुडे वी विल स्टॉप आवर सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज literal. So thank you student, have a good day.